Hi students. Yesterday itself we got idea about the half summary of the poem The Brook. And in this lecture you people are going to enjoy the next portion of the poem, or I can say it is the second part for the explanation of the poem, that is the brook. So kindly go through it carefully. After that I am going to provide you some important questions. Even I'll provide you some reference and context for solving this particular area of education. So as far as this particular poem is concerned, we have to learn this poem line by line. Please listen this, understand it, and then we will be back for question and answer session. Okay friends, wish you all the best. Let's move ahead. Hi student, I welcome you to this class, The Brook. It is written by Alfred Lord Tennyson. This is the second part of this lesson. Till now we have read about the brook, that the brook says that it begins its journey from the place which is frequented by coots and herons. Then it goes through the valleys, the hills, the ridges and farms, and on its way it makes a lot of noise as it overcomes so many obstacles in its way. So let us read further. The next is stanza number 7. I wind about and in and out, with here a blossom sailing, and here and there a lusty trout, and here and there a grayling. Now here, what do we mean by wind about? The brook says that I meander. I just told you that the river or any water body, here you can see also how it is moving. It is moving in a zigzag way. It is winding about. It is meandering. It does not flow in a straight line. It moves in a zigzag pattern. So that is what this brook says. It says I wind about and in and out. So sometimes it goes in and sometimes it moves out. So this is the path which this brook follows. It winds about and it goes in and out. Then it says, with here a blossom sailing. A blossom. What is a blossom? Blossom is a flower. तो ब्रुक कहती है कि कभी कभी मेरे ऊपर बहुत सारे फूल भी तैरते हैं. ऑब्वियसली कई बार ये जो इसके किनारे पे फ्लावर्स लगे हुए हैं ये टूट कर हवा के साथ इस ब्रुक में आकर गिर सकते हैं और फिर ब्रुक के साथ ही ब्रुक की सरफेस पे सेल करेंगे, यानी कि तैरेंगे, बहेंगे. And then the brook says, and here and there a lusty trout. Now what is a lusty trout? Lusty trout. Lusty means greedy, lalchi. क्या है लालची? Trout. Trout is a big freshwater fish. एक ऐसी मछली जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में होती है. तो जैसे कि ये ब्रुक है, ये झरना है, इसमें ऐसी ट्राउट फिशेस तैरती हैं जो कि बहुत ग्रीडी होती हैं, बहुत लालची होती हैं. एंड हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग. ग्रेलिंग इज अनदर टाइप ऑफ फिश. तो ये ब्रुक कहती है कि कभी कभी मेरे ऊपर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल तैरते हैं और कभी कभी कोई लालची मछलियां होती हैं और कभी कभी कोई ग्रेलिंग फिशेस भी होती हैं. ट्राउट और ग्रेलिंग दोनों एक फिशेस के नाम हैं. तो इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं? When he says that sometimes there is a flower which is very beautiful, it is sailing on the brook, and sometimes there is a greedy fish sailing in the brook, and sometimes there is a grayling. Now here he is comparing a man's life's experiences with the brook's experiences. जैसे हमारी लाइफ में भी कभी कोई खुशी भरे हैप्पी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे ही जब इस ब्रुक के ऊपर प्यारे और सुंदर फूल तैरते हैं तो उसको इनसे खुशी मिलती है, उन्हें देख के उसे अच्छा लगता है. So these flowers are indicative of the happy experiences in a man's life.
और जिस तरह कभी हमारी जिंदगी में कोई बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कोई बैड या सैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जो लालची ट्राउट फिश है जो इस ब्रुक पे तैरती है, दिस इज लाइक अ बैड एक्सपीरियंस इन अ मैन्स लाइफ, because the brook also does not feel happy to see this hungry, greedy fish. And then the poet says a grayling. Now grayling refers to shades of gray. Shades of gray means something which is neither happy nor sad. ना तो खुशी भरा एक्सपीरियंस, ना तो दुख भरा एक्सपीरियंस, एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस. आपकी लाइफ में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, वो बड़े नॉर्मल से होते हैं, बड़े आम होते हैं, बड़े रूटीन के एक्सपीरियंसेस होते हैं. उन एक्सपीरियंस को वो कहते हैं ग्रेलिंग, विच इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ फिश. ना वो इतनी ज्यादा लालची होती है और बुरी होती है, ना वो इस फूल जैसी अच्छी होती है, एकदम नॉर्मल सी फिश होती है. सो दिस ग्रेलिंग रेफर्स टू नॉर्मल एक्सपीरियंसेस इन अ मैन्स लाइफ. तो इस स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रुक है ये ऐसे गोल गोल घूमती हुई कभी अंदर चली जाती है, कभी बाहर चली जाती है, और ऐसे जब वो अपना रास्ता कवर कर रही होती है तो उसके रास्ते में कभी खुशी भरे एक्सपीरियंसेस आते हैं, उसके रास्ते में उसके सरफेस पे कभी सुंदर सुंदर फूल तैरते हैं, कभी कोई बुरे एक्सपीरियंसेस भी आते हैं जैसे कि कोई लालची मछलियां होती हैं, ट्राउट फिश, और कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ना बहुत बुरे होते हैं और ना बहुत अच्छे होते हैं, जब उसके अंदर ग्रेलिंग फिश तैरती है जो कि बड़ी नॉर्मल सी फिश होती है. अब इस स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एंटीथीसिस. एंटीथीसिस इज व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन क्लोज कनेक्शन इन द स्टैंजा. और यहां पर एंटीथीसिस है जब वो कहते हैं इन आउट. In and out, both of them are opposite to each other. And another antithesis is here, there. Here and there. This is also an antithesis. So there are two instances of antithesis in this stanza. The next poetic device is repetition. Repetition is when a word or a sentence is repeated in order to lay emphasis on that. So here repetition is used when he says here and there, here and there. This is repetition. ये जो word phrase है ये repeat हो रहा है. The next poetic device is anaphora. Anaphora means दो sentences में same word से दोनों sentences शुरू हो रहे हों. And here and there, and here and there. तो ये दोनों sentences begin हो रहे हैं and से. So this is anaphora. Now let us see the rhyme scheme of this stanza. वही राइम स्कीम फॉलो हो रही है स्टैंजा में भी. ए बी आउट एंड ट्राउट लाइन 1 and 3 ये दोनों राइम कर रहे हैं. सेलिंग एंड ग्रेलिंग लाइन 2 and 4 ये दोनों भी आपस में राइम कर रहे हैं. विद दिस लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा 8. एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रैवल with many a silvery water break above the golden gravel. Now here the brook says here and there, यानी कि इधर उधर कभी कभी a foamy flake. Here you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के ऊपर कैसे ये फोम बनी हुई है, ये बुलबुले बने हुए हैं. Foamy flake is the foam which is on the surface of fast moving brook. ये जो ब्रुक है ये जब बहुत तेज बहती है तो इतनी स्पीड पर पानी की सरफेस के ऊपर झाग बन जाती है. दैट इज द फोमी फ्लेक. अपॉन मी एज आई ट्रैवल, तो वो कहती है जब मैं ऐसे चलती हूं, मैं ट्रैवल करती हूं अपनी जर्नी में, तो मेरी सरफेस के ऊपर फोमी फ्लेक्स बन जाते हैं और वो भी मेरे साथ साथ ट्रैवल करते हैं. देन इट सेज विद मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक. Now what does she mean by this? The color of water becomes silvery. आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये वाटर के बबल्स हैं ये शाइन कर रहे हैं तो ये सिल्वर कलर के लग रहे हैं. So this is what the brook says. With many a silvery water break, that the color of the brook looks to be silvery in color. Above the golden gravel.
Gravel is the sandy surface of the earth which is beneath the brook, and it is golden in color. We can see over here, ये जो नीचे जमीन है, ब्रुक के नीचे की जो जमीन है वो गोल्डन रंग की दिख रही है. So this is the golden gravel. Gravel क्या होता है? It is a kind of a sand. तो ये वो सरफेस है जो इस ब्रुक के नीचे है, धरती की वो तह है जो इस ब्रुक के नीचे है, and it looks to be golden in color. So in this stanza, the brook says that as the brook travels, as it moves along its journey with a lot of speed, foam is formed on its surface. And at times the color of the brook turns silvery, and you can see the golden colored gravel, the golden colored sand on the base of this brook. अब इस stanza के poetic devices देखते हैं. The first is antithesis. Opposite words use हुए हैं यहाँ पर भी, here and there. The next poetic device is alliteration. A consonant sound is repeated in two or more consecutive words. Alliteration है foamy flake. यहाँ पे f sound repeat हो रहा है, foamy flake. Another instance of alliteration, golden gravel. यहाँ पे sound repeat हो रहा है g, golden gravel. Now again let us see the rhyme scheme. इस स्टैंजा में भी पोएट ने वही राइम स्कीम फॉलो की है. फ्लेक एंड ब्रेक, बोथ ऑफ देम आर राइमिंग. फ्लेक, ब्रेक. ट्रैवल, ग्रेवल, ये दोनों भी आपस में राइम कर रहे हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 9. एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर men may come and men may go, but I go on forever. Now here, the brook says, draw them all along. So it says that it takes them along as it flows. Now यहाँ पे ये them क्या है? What is this them? ब्रुक ये कह रही है कि ब्रुक की सरफेस पे जो भी ये फोम बनती है, जो भी चीजें, चाहे वो फूल हैं, चाहे वो मछलियां हैं जो ब्रुक पे तैर रहे हैं, ब्रुक उनको अपने साथ ही ले जाती है जैसे जैसे वो बहती चली जाती है. And it flows to join the brimming river. Brimming, once again, it means full of water up to the brim, मुंह तक भरी हुई नदी. तो ब्रुक में जो भी सामान है, जो भी कुछ उसमें तैर रहा है, ब्रुक उसको अपने साथ ही ले जाती है जैसे वो अपनी जर्नी पर बहती चली जाती है towards its destination, which is this river which is full of water. And then the brook says, men may come and men may go, because man is transient, he is temporary. He comes on this earth with his birth and he goes away from this earth with his death. But the brook is forever. It is permanent, it is perennial, it flows on and on and on. अब इसमें poetic devices क्या use हुए हैं? First is alliteration. The consonant sound is repeated in the beginning of two or more consecutive words. और alliteration use हुई है men may, men may. यहाँ पर म sound repeat हो रहा है. The next poetic device is antithesis. Opposite words are used together. Antithesis is come, go. ये दोनों opposites हैं. This is the instance of antithesis used over here. The next poetic device is repetition. Repetition is the repeated use of words or sentences. Repetition है men may, men may. So these two words are repeated over here. Another instance of repetition is that these three lines which are repeated in 4 stanzas in the poem, in stanza 3, 6, 9 and 13. So as this one is the stanza number 9, ये तीनों lines यहाँ पर भी repeat हो रही हैं. So this is the second instance of repetition in this stanza. Flow, go. So line 1 and 3 are rhyming. Flow, go. River, ever. So line 2 and 4 are also rhyming. Stanza number 10. I steal by lawns and grassy plots. I slide by hazel covers. I move the sweet forget-me-nots that grow for happy lovers.
Now here the brook says I steal. Steal का मतलब ये नहीं है चोरी करना, वो कहती है मैं चोरी चुपके, क्वाइटली, बड़े ही चुपचाप धीरे से लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स यानी कि गार्डन्स के पास से निकल जाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं और यहाँ से ब्रुक एकदम चुपचाप धीरे धीरे निकल जाती है। तो यहाँ पर एकदम से कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। अभी तक ब्रुक क्या करती थी, बहुत नॉइज करती थी जब वो जाती थी, क्योंकि वो वैलीज में से गुजर रही थी, पहाड़ी इलाके में से जा रही थी जहां पर ढलान होती है, स्लोप होती है और ब्रुक की स्पीड बहुत तेज होती है, इस वजह से वो बहुत नॉइज करती है। अब ये एरिया क्या है, ये प्लेन्स है, ये स्ट्रेट लैंड है, यहाँ पर ब्रुक की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं है और इसलिए वो चुपचाप बिना आवाज किए चुपके से क्वाइटली इन लॉन्स और गार्डन्स के पास से निकल जाती है। देन इट सेज आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। हेजल क्या है, हेजल इज अ स्मॉल ट्री और अ बुश विद एडिबल नट्स। आपने सुना होगा नाम हेजल नट, जैसे हम लोग खाते हैं कैशू नट, पिस्ताशियो नट, आलमंड नट, ऐसे ही एक नट्स आते हैं हेजल नट। बहुत सारी चॉकलेट्स भी आती हैं हेजल नट वाली। तो ऐसे हेजल नट के बहुत सारे पेड़ों के गार्डन्स होते हैं जहां से ये जो ब्रुक है ये चुपचाप स्लाइड करके फिसलती हुई निकल जाती है। देन इट सेज आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स। छोटे छोटे फूल होते हैं। फॉरगेट मी नॉट्स क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ फ्लावर और फूल का नाम ही है फॉरगेट मी नॉट यानी कि मुझे भूलना मत। तो ये जो लवर्स होते हैं ये एक दूसरे को ऐसे फूल गिफ्ट करते हैं, तोहफा देते हैं कि तुम मुझे भूलना मत, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो जब ये ब्रुक ऐसे बहती जाती है इसके रास्ते में बहुत सारे गार्डन्स आते हैं जहां पे ये सुंदर सुंदर फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स लगे होते हैं विच ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, यानी कि जो प्यार करने वाले लोग हैं वो इन गार्डन्स में आते हैं और एक दूसरे को ये जो फ्लावर्स हैं गिफ्ट करते हैं। और जब ये ब्रुक इन गार्डन्स के पास से बहती है तो ब्रुक के पानी की वजह से ये फूल भी थोड़े से हिलने लग जाते हैं जब वो पानी उनको छूता है। So in this stanza, the brook says that when it is passing through plain land, it is not very fast, it does not make a lot of noise, it goes very quietly. बड़ी चुपचाप वो इन gardens और lawns को पार करती हुई जाती है और वहां पे हेजलनट पेड़ों के बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं और फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स के बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स हैं जहां पर प्यार करने वाले लोग आते हैं। इस स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा, यानी कि दो सेंटेंसेस का स्टार्ट है जो वो सेम वर्ड से हो रहा है। एनाफोरा यूज हो रहा है आई स्टील, आई स्लाइड, आई मूव। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये शुरू हो रहे हैं आई के साथ। दिस इज एनाफोरा। नाउ लेट अस सी द राइम स्कीम। इस स्टैंजा की राइम स्कीम वही है ए बी, plots, knots. Both of them are rhyming with each other. And then covers, lovers. Perfect rhyme है, absolute rhyme हो रही है line 1 and 3 में and line 2 and 4 में. Now let us see the next stanza number 11. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. Now here the brook says, I slip, यानी कि मैं फिसलती हुई, स्लाइड करती हुई चली जाती हूँ। I gloom, I glance. मैं जब चलती हूँ, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं इधर उधर देखती जाती हूँ। So ये जो चारों वर्ड्स है ये क्या है, ये इस ब्रुक के अलग अलग फीलिंग्स हैं, उसके अलग अलग स्पीड है बहने की और उसकी अलग अलग स्पीड ये इंडिकेट करती है कि उसके जो मूड्स हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। सो द ब्रुक इज नॉट द सेम ऑलवेज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड देन इट सेज अमंग माई स्किमिंग स्वॉलोज। स्किमिंग मीन्स टू रिमूव समथिंग from the surface.
जब आप किसी चीज को किसी लिक्विड की ऊपर की तह पर से उतारते हैं, रिमूव करते हैं, इस एक्शन को कहते हैं स्किमिंग। और यहां पर किस चीज को रेफर कर रहे हैं? फिशेस को, मछलियों को। इस ब्रूक की सरफेस के ऊपर जो मछलियां तैरती हैं उन्हें स्किम किया जाता है। और कौन उन्हें स्किम करता है? स्वॉलोज। स्वॉलोज आर अ बर्ड विच डाइव्स इनटू द ब्रूक फॉर इट्स प्रे, दैट इज द फिश। आपने बहुत बार देखा होगा, कभी फोटोग्राफ्स में भी देखा है, मूवीज में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया। यहां पर वो चिड़िया का नाम है स्वॉलो। वो ऊपर आसमान से ही अपने प्रे को देख लेती है। इस बहते हुए पानी में, इस बहती हुई ब्रुक में उसे फिश दिख जाती है जो कि उसका प्रे है। और वो जो बर्ड है वो आसमान से ही नीचे डाइव करती है अपने प्रे को उठाने के लिए। सो द ब्रुक सेज दैट दिस स्वॉलो इज स्किमिंग दिस फिश फ्रॉम द ब्रुक. So that is what it means by skimming swallows. Then it says, I make the netted sunbeam dance. Now you can see ये जो सूर्य की किरणें हैं, ये जो सनलाइट है, ये इन पेड़ों में से छनती हुई इस ब्रुक के ऊपर गिर रही है। और जब ये इन पेड़ों में से आती है तो ये जो पेड़ों की शैडोज हैं और ये जो सनलाइट है, इनकी दोनों की जो रिफ्लेक्शन है इस ब्रुक पर, इससे एक नेटेड पैटर्न बन गया है। सो इट मीन्स द पैटर्न ऑफ अ नेट इज फॉर्म्ड व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू द ट्रीज एंड फॉल्स ऑन द ब्रुक्स सरफेस। इन पेड़ों में से जब ये सनलाइट इस ब्रुक पर आती है तो एक नेट जैसा पैटर्न बन गया है इस ब्रुक की सरफेस पे। दिस इज द नेटेड सनबीम एंड द ब्रुक सेज, आई मेक दिस नेटेड सनबीम डांस। अब ये डांस कैसे करती है? जब ये ब्रुक का पानी बहता है, ये फ्लो करता है, तो इसके फ्लो करने से क्या होता है? ये जो नेटेड सनबीम है, ऐसा लगता है कि ये भी चल रही है, ये भी डांस कर रही है। अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज. Sandy shallows is the base of the brook which is not very deep and has sand in it. Sandy shallows. Shallow means जो चीज बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती, बहुत ज्यादा डीप नहीं होती। तो हम देख सकते हैं ना, यहाँ पर पानी की सरफेस का नीचे जो बेस है वो भी दिख रहा है। सो दिस इज द सैंडी शैलोज। तो ब्रुक यहाँ पर ये कह रही है कि मैं अलग अलग मूड्स में, अलग अलग बदलते हुए मूड्स में बहती चली जाती हूँ। कभी मेरी सरफेस पर से ये स्वैलो बर्ड्स हैं जो ये मछलियों को स्किम करके ले जाती हैं, और जो मेरे ऊपर ये सनलाइट पड़ती है नेट के पैटर्न में, जब मैं बहती हूं तो ये सनलाइट भी ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर डांस कर रही है। मेरी सैंडी सरफेस के ऊपर ऐसे लगता है कि ये नेटेड पैटर्न डांस कर रहा है। अब इस स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन डिटन। साइन डिटन मैंने आपको पहले भी बताया था। व्हाट इज दिस पोएटिक डिवाइस? It is a writing style when conjunctions are not used in a sentence. अब जो लाइन 1 है, I slip, I slide, I gloom, I glance, यहाँ पे कॉमास यूज हो रहे हैं लेकिन and conjunction यूज नहीं हो रहा है। So this is sign written. Next poetic device है alliteration. Alliteration कहाँ पर है? Skimming swallows. यहाँ पे स साउंड रिपीट हो रहा है। Now let us see the rhyme scheme. Rhyme scheme वही है इस स्टैंजा की भी। Line 1 glance, line 3 dance, ये दोनों राइम कर रहे हैं। And then line 2 swallows and line 4 shallows. Both of them are also rhyming. So the rhyme scheme is again A, B, A, B. Let us see the next stanza number 12. I murmur under moon and stars. In brambly wilderness, I linger by my shingly bars. I loiter round my cresses. Now here murmur क्या होता है? Murmur means to speak very softly. बहुत ही धीरे धीरे जब हम आपस में गुपचुप करके बात करते हैं, that is a murmur.
तो ये जो ब्रुक है ये कहती है आई मर्मर, यानी कि मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, अंडर मून एंड स्टार्स, यानी कि नाइट टाइम में, रात के समय में। ब्रुक कैसे बिहेव करती है रात के टाइम में? धीरे धीरे बोलती है, बड़ी ही सॉफ्टली मर्मर करती है। इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस। Now what is brambly wilderness? It is the wild growth, जंगली पौधे उगे होते हैं, of a thorny shrub. Brambly is a thorny shrub, एक कांटेदार पौधा, और वो बहुत ही जंगल की तरह उगा होता है। तो जब रात के समय ब्रुक ट्रैवल कर रही होती है तो वो एक ऐसे एरिया में पहुंचती है जहां पर ऐसे कांटेदार पौधे लगे हुए हैं और उनके जंगल है। ऐसे एरिया से ये ब्रुक रात के समय निकलती है और तब वो बहुत ही धीरे धीरे बोलती है। देन इट सेज आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। शिंगली मीन्स छोटे छोटे हीप्स विच आर कवर्ड विथ स्मॉल राउंडेड पेबल्स। छोटे छोटे पत्थरों के ना जैसे पहाड़ियां बनी होती हैं, तो वो शिंगली बार्स कही गई हैं। आपने देखा होगा जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो ऐसे इकट्ठे होके ढेरियां बन जाती हैं। तो जब ऐसे किसी ढेरी को ये ब्रुक क्रॉस करती है, जब वो इससे टकराती है, वो कहती है आई लिंगर बाय। लिंगर मीन्स किसी चीज के आसपास थोड़ा सा टाइम ज्यादा बिताना। ऑब्वियसली जब कोई भी हर्डल आएगा इस ब्रुक के रास्ते में तो वो इससे टकराएगी और फिर थोड़ा सा इधर गोल से घूम के फिर बहने लग जाएगी। तो जब ऐसा वो करेगी तो वो ज्यादा टाइम इस हीप के आसपास बिताएगी, एंड दैट इज व्हाई इट सेज आई लिंगर, आई स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दीज शिंगली बार्स। देन इट सेज आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। क्रेसेस क्या होते हैं? पंजेंट लीव्ड प्लांट विच इज लाइक अ कैबेज। पानी में बहुत सारे पौधे उगते हैं, तो ऐसा ही एक पौधा है जिसे क्रेस कहा जाता है। इट इज लाइक अ कैबेज, बंद गोभी की तरह दिखने में वो होता है। ऐसे ही जब ऐसे पौधे आते हैं इस ब्रुक के रास्ते में तो उनके आसपास से भी वो ऐसे ही टकराकर साइड से होकर फिर गुजर जाती है। सो इट सेज आई लॉइटर राउंड, यानी कि मैं थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करती हूँ जब मैं ऐसे क्रेसेस प्लांट्स को भी टकराती हूँ। तो इस स्टैंजा में ब्रुक ये बता रही है कि वो रात के समय में कैसा बिहेव करती है। वो कहती है मैं धीरे धीरे बोलती हूँ जब ऊपर आसमान में मून और स्टार्स होते हैं, यानी कि रात का समय होता है, और कहती है तब मैं ब्रैम्बली वाइल्डरनेस को क्रॉस करती हूँ, यानी कि कांटेदार पौधों का जंगल होता है जिसके पास से मैं गुजरती हूँ रात के समय। और तब फिर वो कहती है जब मेरे रास्ते में छोटे छोटे पत्थरों की छोटी छोटी ढेरियां आती हैं तो मैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिताती हूँ क्योंकि मुझे उन्हें क्रॉस करके आगे बहना होता है। और ऐसे ही जब मेरे रास्ते में क्रेस जैसे और भी पौधे आते हैं तो मैं उनके आसपास भी थोड़ा सा और वक्त गुजार के फिर आगे बहती चली जाती हूँ। अब इस स्टैंजा के पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। द फर्स्ट इज ऑनमाटपिया। ऑनमाटपिया इज द यूजेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। यहाँ पे ऑनमाटपिया यूज हुआ है मर्मर में, विच इज द साउंड ऑफ स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एनाफोरा। Two sentences or more than two sentences begin with the same word, and here anaphora is I linger, I loiter. दोनों sentences शुरू हो रहे हैं I के साथ. This is anaphora. अब इस stanza की rhyme scheme discuss करते हैं. Again the same rhyme scheme is followed. A B stars and bars दोनों rhyme कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. Wildernesses, cresses, they are also rhyming with each other. It's a perfect rhyme scheme. Let us move on to the next stanza, number 13. And out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. Now here the brook says, and out again. So once again it crosses all these hurdles, it crosses all these wilderness, and it curves, it meanders. Here you can see
This brook is meandering. It is making a curve. It is turning and it flows. वो बहती चली जाती है towards its destination. Now, as this is stanza number 13, again line 2, 3 and 4 are repeated once again. The brook wants to stress on this, that it is moving towards its destination, the river which is full of water, which is prosperous, which is growing. And the brook says, men may come and men may go. Man is temporary. He comes with his birth and he goes with his death. He is transient, but the brook is forever. It goes and on and on and on. It keeps on flowing. It never stops. अब इस स्टैंजा में क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं? द फर्स्ट इज इन्वर्जन. इन्वर्जन कहाँ यूज हो रही है? लाइन नंबर 1. एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो. सो हियर अगेन आई कर्व एंड फ्लो पहले आना चाहिए था. इट इज द सब्जेक्ट, बट द पोएट वांट्स टू एम्फसाइज द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई ही हैज यूज्ड इन्वर्जन. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है रेपिटेशन. लाइन नंबर 2, 3, 4 रिपीट हो रही हैं in stanzas 3, 6, 9 and 13. Again there is repetition of words. Men may. This is also repetition. Another poetic device is alliteration. The consonant sound that is repeated here is m. He says men may. And the rhyme scheme of this stanza is again the same. A, B, flow and go. Both of them are rhyming. And then river, ever. ये दोनों भी आपस में perfectly rhyme कर रहे हैं. With this, the poem comes to an end. Let us see the summary. The brook tells us about its journey as it flows towards its destination, a river which is full of water. इस पोएम में हमें ये ब्रूक अपनी जर्नी बता रही है, अपना ट्रैवल बता रही है, और वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है जो कि एक नदी है पानी से भरी हुई. इट इमर्जेस सडनली फ्रॉम अ प्लेस विच इज विजिटेड बाय वाटर बर्ड्स लाइक द कूट एंड हेरन. अब ये ब्रूक कहाँ से शुरू होती है? एक ऐसी जगह से जहां पर वाटर बर्ड्स आती हैं, कूट एंड हेरन. इट फ्लोज विद अ लॉट ऑफ नॉइज डाउन द वैलीज. जैसे जैसे ये ब्रूक वैलीज में से क्रॉस करती है, ये बहुत ज्यादा आवाज करती है. ऑन इट्स वे इट क्रॉसेज मेनी हिल्स, रिजेस, विलेजेस, टाउन्स, ब्रिजेस एंड फार्म्स टू रीच द डेस्टिनेशन, द रिवर. इस ब्रूक के रास्ते में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आते हैं, पहाड़, रिजेस, गांव, शहर, बहुत सारे ब्रिजेस और बहुत सारे खेत, जिनको पार करती हुई ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बहती चली जाती है. It makes sharp, loud sounds when it strikes hurdles like big rocks and diverts itself with a sharp turn. जब ये ब्रूक बहुत बड़े बड़े पत्थरों से टकराती है तो ये बहुत बड़ी, बहुत शार्प आवाजें करती है और अपना रुख बदलती है. It forms bubbles and whirls when it reaches large spaces. कभी कभी इस ब्रूक के ऊपर बुलबुले भी बनते हैं और ये घुमेरियों में भी घूमने लग जाती है जब ये बहुत खुले एरिया से क्रॉस करती है. इट प्रोड्यूसेस सॉफ्ट स्वीट नॉइसेस व्हेन इट स्ट्राइक्स स्मॉल पेबल्स ऑन इट्स वे. जब इसके रास्ते में छोटे छोटे पत्थर आते हैं तो ये बड़ी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाजें करती है. द ब्रूक ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड इरोड्स इट्स एम्बैंकमेंट्स ग्रेजुअली. जैसे जैसे ये ब्रूक टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई जाती है, ये अपने किनारों को भी धीरे धीरे इरोड करती हुई अपने साथ बहाने लग जाती है. इट क्रॉसेज मेनी फार्म्स, वेकेंट लैंड एंड ब्यूटिफुल फेरी लैंड्स विच आर फुल ऑफ फ्लावर्स. ब्रूक के रास्ते में बहुत सारे खेत आते हैं, बहुत सारी खाली जमीन आती है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें आती हैं जैसे कि परियों की कहानी में होती हैं. The brook compares itself with men, that men come when they are born and go when they die, but it is forever. It keeps on flowing and never ends. The brook is permanent whereas men are temporary. अब ये क्रक्स है इस पोएम का, जहां पर ब्रूक अपने आप को आदमी के साथ कंपेयर करती है
वो कहती है कि आदमी टेम्पररी हैं, वो पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं, लेकिन जो ब्रुक है वो परमानेंट है, वो हमेशा बहती रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती. Like men, the brook also experiences different things. अब हमारी तरह ये ब्रुक भी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस को फेस करती है. The flowers sailing on its surface are like the happy experiences of a man. The greedy troutfish is like an unhappy experience, and the grayling fish shows shades of grey, which represents those experiences which are neither happy nor sad. अब जैसे हमारी लाइफ में भी हैप्पी, सैड और नॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वैसे ही ब्रुक की लाइफ में भी, ब्रुक की जर्नी में भी मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं. जब उसके ऊपर सुंदर फूल तैरते हैं तो वो खुशी भरे एक्सपीरियंसेस होते हैं. जब उसके ऊपर लालची ट्राउट फिश तैरती है तो वो दुखी भरा एक्सपीरियंस होता है. और जो ग्रेलिंग फिश है वो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस दिखाती है. Sometimes there is foamy formation on the brook surface and its color looks silvery, which is so clear that the sand beneath the brook shines in a golden color. ब्रुक कहती है कि कभी कभी ब्रुक के ऊपर फोम भी बनती है जब वो बहुत तेज चलती है, और उसका जो रंग है वो सिल्वर कलर का लगता है, और उसके नीचे की जो जमीन है वो गोल्डन कलर से चमकती है. Then the brook is calm when it crosses lawns and gardens full of hazelnut trees and forget-me-not flowers. These are visited by lovers. The brook moves in varying speeds and different thoughts cross its mind as the swallow bird flies to its surface and catches its prey, the fish. ब्रुक कहती है कि वो बड़ी शांत स्वभाव में चलती है जब वो गार्डन्स को क्रॉस करती है जहां पे बहुत सारे हेजलनट के पेड़ लगे हैं और फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स लगे हैं, और इन गार्डन्स में प्यार करने वाले लोग भी आते हैं. फिर हमें ब्रुक ने बताया कि वो बहुत अलग अलग स्पीड्स पर चलती है, और जब वो चलती है तो उसके दिमाग में बहुत अलग अलग ख्याल भी आते हैं, जैसे कि इंसानों के साथ भी होता है. और फिर वो ये कहती है कि कभी कभी उसके सरफेस पे ये स्वॉलो बर्ड उड़ के आती है और मछलियों को स्किम करके उनको उठाकर वहां से ले जाती है, उन्हें खा लेती है. The sunlight which falls on the brook's surface after passing through the trees forms a netted pattern. फिर हमें ब्रुक बताती है कि ब्रुक के सरफेस पे जो सनलाइट पड़ती है वो बहुत सारे पेड़ों को पार करके आती है, और इन पेड़ों की परछाई की वजह से एक नेट का पैटर्न बन जाता है ब्रुक की सरफेस पे. एंड विद द फ्लोइंग ब्रुक दिस पैटर्न ऑल्सो मूव्स एंड सीम्स टू डांस ऑन इट्स सरफेस. जैसे कि ये ब्रुक चलती जाती है तो ऐसा लगता है कि जो नेट वाला पैटर्न है ये भी चल रहा है और ये ब्रुक की सरफेस पे डांस कर रहा है, नाच रहा है. At night, the brook makes very soft noises as it crosses wild areas. As the brook crosses small heaps of pebbles and watercress plants, its speed slows down. ब्रुक हमें बताती है कि रात के समय वो बहुत ही धीरे धीरे आवाजें करती है और वो जंगली एरियाज को क्रॉस करती है जहां पे कांटेदार पौधे लगे हुए हैं. जब ब्रुक के रास्ते में छोटी छोटी ढेरियां आती हैं पत्थरों की या फिर पौधे आते हैं, तब उसकी स्पीड धीरे हो जाती है और वो इनको क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है. और फाइनली इट कंप्लीट्स इट्स जर्नी एंड रीचेस द डेस्टिनेशन विच इज द रिवर फुल ऑफ वाटर. और इन सब चीजों को क्रॉस करती हुई ये जो ब्रुक है ये अपना रास्ता तय करती है और अपनी डेस्टिनेशन पे, जो कि एक नदी है पानी से भरी हुई, वहां पर पहुंच जाती है, उसमें मिल जाती है. अब इस लेसन से क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. First of all, we have to answer the following questions. Question number 1 है, how does the brook sparkle? हमने फर्स्ट आंसर में पढ़ा था that the brook says I sparkle. तो कैसे वो brook sparkle करती है? आंसर है, the brook sparkles when it emerges in the backdrop of green fern plants. पीछे हरे हरे पौधे लगे होते हैं और उनकी बैकड्रॉप में ये ब्रुक चमकती है. The bright sunlight makes it sparkle and shine. जब इस ब्रुक के ऊपर ये बहुत ही अच्छी और सुंदर सूरज की लाइट पड़ती है तो ऐसे लगता है कि ये ब्रुक का पानी चमक रहा है, स्पार्कल कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है,
Bicker means to quarrel. Why does the poet use this word here? Bicker का मतलब है लड़ाई झगड़ा करना. तो पोएट ने ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया है? The answer is bicker means sound of noisy discussion. बहुत ही जोर जोर से जब आप कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो that sound is called bicker. As the brook flows hurriedly down the steep valley, it makes a similar noise as if a noisy discussion is being done. जब ये ब्रूक बहुत ही स्टीप वैलीज को, खाइयों को पार करती है, तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और इसलिए वो ऐसी ही आवाज करती है, ऐसे लगता है कि बहुत जोर जोर से कोई डिस्कशन चल रही है, बिकरिंग हो रही है. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी हिल्स एंड ब्रिजेस डज द ब्रूक पास ड्यूरिंग इट्स जर्नी? ब्रुक के रास्ते में कितने पहाड़ और ब्रिज आते हैं? आंसर है द ब्रुक पासेस थ्रू 30 हिल्स एंड 50 ब्रिजेस ड्यूरिंग इट्स जर्नी. हमने स्टैंजा 2 में पढ़ा था दैट द ब्रुक सेज आई पास थ्रू 30 हिल्स एंड half a 100 ब्रिजेस, यानी कि 50 ब्रिजेस. नेक्स्ट है, वेयर डज इट फाइनली मीट द रिवर? द आंसर इज फिलिप्स फार्म इज द ब्रूक्स लास्ट लैंडमार्क आफ्टर विच इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन द रिवर. ब्रुक कहती है एट लास्ट फिलिप्स फार्म आई पास, यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन जहां पे फिर ये ब्रुक अपनी डेस्टिनेशन रिवर को मिल जाती है, दैट इज फिलिप्स फार्म. क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई हैज द वर्ड चैटर बीन रिपीटेड इन द पोएम? पोएम में वो कहती है चैटर चैटर, इसको रिपीट क्यों किया गया है? आंसर है द पोएट वांट्स टू एम्फसाइज ऑन द वर्ड चैटर एंड सो इट हैज बीन रिपीटेड. The brook often chatters or makes continuous sound as it flows. उसकी continuity को शो करने के लिए उन्होंने इस वर्ड को रिपीट किया है, chatter chatter. Question number 6. With many a curve my banks I fret. What does the poet mean by this statement? Answer है the line with many a curve my banks I fret. The brook says that as it makes twists and turns, it strikes the land on its edges. जैसे जैसे ये ब्रुक गोल गोल घूमती हुई जाती है, इसके जो किनारे हैं ये उनसे टकराती है, एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस लैंड वेयर्स ऑफ एंड द लूज सैंड फ्लोज विद द फ्लोइंग ब्रुक. जैसे जैसे वो इन किनारों से टकराती है, ये जो किनारे हैं ये भी धीरे धीरे वेयर ऑफ हो जाते हैं और ये इस ब्रुक के साथ ही मिलके इसके साथ ही बहने लग जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट. What kind of a picture does this line create in your mind? इसका आंसर है the line creates a scene where we imagine the brook as flowing in a zigzag pattern like a maze or a whirlpool. जब ये ब्रुक कहती है I wind about and in and out, तो ऐसे लगता है कि वो किसी zigzag जैसी पैटर्न में फ्लो कर रही है, जैसे कोई पजल होती है या फिर गोल गोल वो एक whirlpool की शेप में चल रही है. Question number 8 है, we have to name the different things that can be found floating in the brook. Answer है the different things which float in the brook are flowers, fishes, foam, bubbles, watercress plants, twigs and leaves. तो इस brook के surface पे ये सब चीजें तैरती हैं. Question number 9 है, what does the poet want to convey by using the words steal and slide? इन दो वर्ड्स का क्या मतलब है? आंसर है द वर्ड्स स्टील एंड स्लाइड रेफर टू द क्वाइट नॉइजलेस मूवमेंट ऑफ द ब्रुक. जब ब्रुक ये कहना चाहती है कि वो चुपचाप बिना ज्यादा आवाज किए चलती है, तो वो कहती है आई स्टील एंड स्लाइड. क्वेश्चन नंबर 10 है, द पोएम हैज मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन. लिस्ट एनी 5 एग्जाम्पल्स. आंसर है एलिट्रेशन के 5 एग्जाम्पल्स क्या है? Sudden Sally, S sound repeat है. Field and fallow, F sound repeat है. With willow weed, V sound repeat है. Gold and gravel, G sound repeat है. Slip, slide, S sound repeat है. Question number 11. I make the netted sunbeam dance. What does the netted sunbeam mean? How does it dance? यहाँ पे हमें बताना है नेटेड सनबीम क्या है और ये डांस कैसे करती है. आंसर है नेटेड सनबीम मीन्स दैट द सनबीम which passes through trees and shrubs as it reaches the brook.
So it makes a netted pattern which is called the netted sunbeam. तो जो सन की बीम है, सन की लाइट है, वो इन पेड़ों और पौधों से निकलती हुई ब्रुक तक पहुंचती है और उसका एक नेट जैसा पैटर्न बन जाता है ब्रुक की सरफेस पे, जिसे नेटेड सनबीम कहा गया है. एंड व्हेन द वाटर फ्लोज, दिस पैटर्न सीम्स टू डांस ऑन द ब्रुक सरफेस. जब ये ब्रुक का पानी बहता है तो ये जो पैटर्न है ये भी उसके साथ मूव करता है और ऐसे लगता है कि वो इस ब्रुक के ऊपर डांस कर रहा है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीफ्रेन इन द पोएम? व्हाट इफेक्ट डज इट क्रिएट? रीफ्रेन क्या होता है? किसी चीज को बार बार रिपीट करना. और यहाँ पे रीफ्रेन यूज हो रहा है, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई फ्लो ऑन फॉर एवर. द यूज ऑफ दिस लाइन रिपीटेडली puts emphasis on the fact that man is transient and temporary, whereas the brook is eternal, it is never ending. बार बार इस लाइन को इसलिए रिपीट किया गया है, इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए कि मैन टेम्पररी है, वो ट्रांजिएंट है, वो शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन जो ब्रुक है वो इटर्नल है, फॉरएवर है, नेवर एंडिंग है, पेरेनियल है. नेक्स्ट वी हैव टू रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस which follow. The lines are, I chatter, chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Question number 1 है, who does I refer to in the given lines? I refers to the brook. Question number 2 है, how does it chatter? Answer है, as the brook flows, it makes a lot of noise when it strikes pebbles and stones. जब ये ब्रुक चलती है और ये पत्थरों से टकराती है तो ये बहुत ज्यादा आवाज करती है, उसे उसने चैटर कहा है. क्वेश्चन नंबर 3 है, why has the poet used the word brimming? What kind of a picture does it create? आंसर है, brimming means full to the top, पूरा मुंह तक भरा होना, and it gives the image of a river which is full of water. इससे हमें ये लगता है कि जो नदी है, इस ब्रुक की जो डेस्टिनेशन है वो पानी से भरी हुई है. Question number 4 है, explain the last 2 lines of the stanza. Answer है, in these lines the brook says that man is mortal. He comes when he is born and goes when he dies. On the other hand, the brook is forever. It is permanent. The brook flows forever. इन 2 लाइन्स में पोएट ये कह रहे हैं that men are transient, they are temporary, they come with their birth and they go with their death, but the brook says that the brook is forever, it is perennial, it flows forever, it is permanent. With this chapter comes to an end. Thank you.